अभी आवाज आ रही है? यस, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन, ओके। सो आई होप आप लोगों का स्टडीज बढ़िया चल रहा है, आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा है। एंड let's now begin with our topic for today, which is based around vocabulary. So in this session what we'll be doing is कि vocabulary as a whole कैसे discuss कर सकते हैं। मतलब we will not be just focusing on synonyms and antonyms, not focusing just on idioms and phrases, not just on one word substitution. ये एक मेरा थोड़ा अलग तरीका होता है, idioms and stories वाला। So what we'll be doing today is कि हम एक story देखेंगे। It's about fables and parables, जो बचपन में भी हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज जो सुनाते थे, उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक पैसेज है, एक छोटा सा पैसेज है। But based on that passage, by the end of this session, we would have covered around 40 new words. You can say, when I say this number 40, it will include a lot of words. It will have a lot of one word substitutions. It will also have a lot of idioms and phrases. So this is how we are going to proceed with our session for today. And I hope everyone is ready. And let's now begin with our session, guys. ठीक है, कोई भी किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, so let me know in the chat section. And let's begin with our session now. I hope the screen is visible to everyone. Is it? Okay, okay. Just a second. We are doing vocabulary today, Rishant. We're doing vocabulary. Chalo bhi. So can anyone tell me what is a fable? F-A-B-L-E. What is a fable, students? Manasvi, we are just beginning with our session for today, which is based around a lot of vocabulary. So, and the topic that we are discussing, the passage is titled Fables and Parables. So, okay, so Praket says ki it's a short story, Disney short story, Aarti story, Manasvi. We will be doing reading comprehension, sure, as you might have seen कि हमारे classes में यही mix and match चलता रहता है. There are sessions for grammar, there are sessions for vocabulary, then there are sessions for reading comprehension as well. तो वो जब lined up होगा, we'll be having those sessions of reading comprehension as well. So fables and parables. Now fables and parables are basically stories with a moral. But what is that hairline difference between fables and parables? क्या difference होता है दोनों में? क्या difference होता है? No, parables are not poem. See, both are stories with a lesson. Stories with a lesson or a moral. But fables में what happens? Fables में generally the characters that we use in fables are animals. Fables में animals होते हैं. Yes, संस्कृति very good. जैसे आप हेयर एंड टॉर्टोइस, कछुए खरगोश की स्टोरी आई गेस सबने सुनी होगी. सो हेयर एंड टॉर्टोइस स्टोरी. पैराबेल्स में ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं कि भाई किसी पुअर आदमी और किंग की कोई स्टोरी है, वहां से कुछ मॉरल मिल रहा हो. फैबल्स एंड ठीक है, वो पैराबेल्स होता है. फैबल्स में लाइक एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑनवेल, दिस इज ऑल्सो a book जिसमें animal characters हैं और कुछ lessons हैं. Now, it's not about fables, it's not about parables. What is it exactly about? तो एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में when it comes to your रोहतक, IP मैट रोहतक, when it comes to your जिप मैट, IP मैट इंदौर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन में आ सकता है कि a short animal story with a moral is known as a fable. So fable or parable. Yes, Lakshita, like
जीजस का एग्जाम्पल लेके बहुत सारी स्टोरीज होती है, किसी भी गॉड का एग्जाम्पल लेके बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं. सो दैट इज व्हाट फैबल्स आर. सो आई होप स्टूडेंट्स वी आर डन विथ द फर्स्ट टू वर्ड्स फॉर टुडेज सेशन, which is fables and parables. Anyone, any doubts till now? Not God stories, Shruti, but what you need to keep in mind कि fable और parable में कुछ moral value, कुछ lesson सिखा रहे होते हैं. Fables में animal characters होते हैं, parables में animal characters नहीं होके humans का कोई example लेते हैं, humans से related कोई story देखते हैं. ईशान, we are doing vocabulary today, जिसमें stories के through हम कैसे बहुत सारे words सीख सकते हैं, हम उस पर focus कर रहे हैं. So we'll be discussing a lot of synonym antonyms. We'll be doing a lot of idioms and phrases, and at the same time we'll be doing a lot of one word substitution question. ठीक है. कबीर डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि फैबल्स में एनिमल्स होते हैं मेन कैरेक्टर्स, पैराबल्स में ह्यूमंस होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है. ठीक है. सो सीम्स लाइक वी आर डन विथ व्हाट आर फैबल्स एंड पैराबल्स. नाउ अब जो पैसेज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहां से अब हमारा काम शुरू होता है. Yes, Dhananjay, of course, God-related कोई story है, so that can fall under the category of parables. Absolutely. Now let's talk about the passage that we are going to discuss, or should I say the story that we are going to discuss. Or yes, there aren't any exceptions, Srushti. There aren't any exceptions. So now let's talk about the story that we are discussing. And आपको ये story याद रहती है नहीं रहती है, that is not a matter of my concern. What I am concerned about is कि क्या क्या हमारे नए words हमें मिल रहे हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे idioms and phrases मिल रहे हैं, हमें उस पर focus करना है. So here's a short story. ये छोटा सा part है, जरा जल्दी से इस छोटे से part को आप पढ़ लो. And जो भी words मैंने blue color में लिख रखे हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम वर्क करेंगे. सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 40-45 नए वर्ड्स कर लिए. ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट एक बार इसको रीड करो लेजेंड्स एंड एनेक्डोट्स से लेके लास्ट तक, एंड देन आई विल रीड थ्रू इट. आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. आई विल ट्राई एंड आल्सो एक्सप्लेन कि व्हाई दैट वर्ड फिट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट. ये कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपी मैट इंदौर में ऑलवेज देयर आर 3 to 4 क्वेश्चंस जो डबल फिलर ट्रिपल फिलर वाले क्वेश्चन होते हैं, एंड दैट कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, राइट? So just go through this story and let me know when you guys are done reading. कोई भी word, कोई भी idiom आपको लगता है कि सर ये तो पहली बार सुना है, meaning नहीं समझ में आ रहा, so let me know, we can have a discussion on it. Yes, Manasvi, ingrained is something which is very minute, something which is deeply embedded in anyone's system. That is what ingrained is all about. Anecdotes क्या होते हैं? Anecdote किसी पास की स्टोरी को हम शॉर्ट में बता देते हैं. दैट इज व्हाट एन एनेक्डोट इज ऑल अबाउट. ठीक है. शॉर्ट अकाउंट ऑफ एनीथिंग. किक द बकेट मींस टू डाई, सृष्टि. if we say someone kicked the bucket, that means he has died. Bated breath, नव्या. bated breath मतलब बिल्कुल anxious, curious होके हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं. Raconteurs are people who are very good at storytelling. आपने देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें आप कोई बात बता दो कि यार आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एंड they'll come up with their own story कि यार अरे मेरे भी एक बार ऐसे
पेट में दर्द हुआ था, फिर मेरे भी एक भैया थे, उनको ऐसा हो गया था, वो एडमिट हो गए थे। सो दोस काइंड ऑफ पीपल, मतलब रैकेंटर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। सम पीपल आर वेरी गुड एट स्टोरी टेलिंग, सम पीपल आर वेरी गुड एट स्टोरी मेकिंग, वो कुछ का कुछ बना देते हैं, ठीक है। लेजेंड्स, इशिका, लेजेंड्स मतलब पुराने इंसिडेंट्स, पुराने स्टोरीज, दैट इज व्हाट लेजेंड्स आर। थ्रो अप द स्पंज मीन्स टू सरेंडर, and willy-nilly is, I think willy-nilly means ki whether one wishes to do something or not, that is what willy-nilly is all about, ठीक है। willy-nilly बिल्कुल अगर precise meaning, हाँ, तो whether we want something to happen or not, that is what willy-nilly is. So we have to surrender whether we want or not. Mealy-mouthed is soft spoken. Gift of the gab, excellent oratory skills. Gift of the gab से आपको हमेशा याद रखना है मोदी जी को भी, मोदी जी को हमेशा यही कहा जाता है that he has excellent public speaking skills. I will explain the meaning of all the words that are written here. अभी जो आप पूछते जा रहे हैं मैं वो आंसर करते जा रहा हूँ। वर्ड्स तो मैं सारे बताऊंगा, पैसेज भी, पैराग्राफ भी पूरा पढ़ के मैं बताऊंगा। Weal and woe is joy and sorrow. It is joy and sorrow. So I think, हाँ, ये ओरेटरी स्किल जो मोदी जी वाला एग्जाम्पल, ये मैंने पहले भी शायद बताया है आप लोगों को। सो आई थिंक यू गाइज आर डन रीडिंग दिस पार्ट ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पर मैंने कितने वर्ड्स मार्क किए हैं, इस पर जरा फोकस करते हैं, एंड देन लेट्स कंसंट्रेट ऑन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो रैकेंटर हो गया, गिफ्ट ऑफ गैब हो गया, लूसिड हो गया, ठीक है, माइन्यूट, ingrained, close to your heart, bated breath, mealy mouthed, stood in great stead, yarn, kick the bucket, fit as a fiddle, bolt from the blue, the wheel and woe, willy-nilly, and throw up the sponge. So ये जितने भी words अब हमें मिल रहे हैं, इनके बारे में जरा discussion कर लेते हैं. So legends and anecdotes make us nostalgic. Now, what are legends and anecdotes? Navya, I would say, लिख लोगे तो अच्छी बात है. What you rather what I would say कि आप अभी समझते चलो, जब मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, एक बार खुद रीड करना, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे, जो लगते हैं कि नहीं ये हम भूल गए, उनको you should try and write somewhere, ठीक है. So legends and anecdotes. What are legends and anecdotes? Legend लिख लो भी, short story of past that is believed to be true. ठीक है, तो ये मैं next slide में लिख देता हूँ. Legends, short stories of the past that we believe are true. ठीक है. Then we have anecdote. So anecdote is short account of a particular incident. हाँ, वो वाला लेजेंड सौम्य अलग होता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा लेजेंड है, कोई पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा लेजेंड है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा लेजेंड है, वो लेजेंड अलग होता है, वो लेजेंड अलग होता है, ठीक है. So short account of an incident, that is what anecdote means. So legends and stories and anecdotes, पुरानी कहानियां, they make us nostalgic. What is nostalgic, students? What is nostalgic in this context? Yes, when we get emotional thinking about the past. ठीक है. So nostalgic means to get emotional. To get emotional thinking of the past. Past का सोच के you get emotional. I have not heard of this idiom, Dhruba. Can you please tell me कि किस context में आपने idiom पढ़ा है? So legends and anecdote make us nostalgic and they take us down the memory lane of our childhood. हम past की memory lane में चले गए, past में खो गए.
Our grandparents were raconteurs. They were raconteurs. Raconteurs are people who are good at storytelling. People who are good at storytelling. There isn't a lot of difference, Lavanya. There isn't a lot to choose between legends and anecdotes. They are more or less the same. So raconteurs are people who are good at telling stories, and they had gift of gab. Who our grandparents are being talked about here. So gift of gab means to have great oratory skills. To have great oratory skills. That is what gift of gab means. Their lucid way of explaining. What is lucid, guys? Yes, Praket. So their lucid way of explaining, lucid is something which is clear. Oratory means public speaking, sure. Public speaking, that is what oratory skills is. So lucid is something that is clear or that is easy to understand. That is what lucid means. So their lucid way of explaining the minute and ingrained details of a story. What is ingrained, students? Water is lucid. Yes, Srushti. No, Praket. They are not the same. They are not the same. So ingrained means something which is deep rooted. Pellucid भी एक word होता है ऋषांत. Pellucid भी clear और clarity से ही related होता है. So their ingrained details of the story they narrated made this relation close to heart. Now what is close to heart, students? Close to heart, I don't think बहुत सारा इसमें problem आना चाहिए. Close to heart means something that is very close to you, something very loving to you. Yes, Ishika. Lavanya, ingrained means something which is deep rooted. Deep rooted. ठीक है. Every night I waited with bated breath. Bated breath का meaning है bated breath का meaning आप लिख सकते हो in anxiety. You are waiting in anxiety or anticipation कि अब क्या बढ़िया स्टोरी, आज कौन सी बढ़िया स्टोरी सुनने वाले हैं, इस सेंस में. Curious, yes. Bated breath for the folk tales and yarn. Yarn. What is yarn in this case? Yarn का क्या meaning है? Folk tales सुना रही है grandmother and yarn. Yarn is an exciting or interesting story. Yarn is exciting or interesting story. That is what yarn is. Of my grandmother who was mealy mouthed. Mealy mouthed means soft spoken. Soft spoken. Mealy mouthed is soft spoken, है ना? And stood in great, नहीं. Stood in great stead. Stood in great stead का meaning होता है to be helpful. ठीक है. Whenever anyone needed her, she kicked the bucket. Kick the bucket matlab she died. Kick the bucket means to die. Meher, gift of gab means to have excellent oratory skills, excellent public speaking skills. बहुत अच्छा जो लोग बोल पाते हैं. Politicians बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे उनके skills होते हैं, oratory skills. To yearn for जैसा कुछ नहीं होता है सृष्टि. Yearn होता है वो YEARN. That is something which is different from what we have studied here. So she kicked the bucket when she was fit as a fiddle. Fit as a fiddle means to be extremely fit. Fit as a fiddle means to be very fit.
Naitik, are you not added to the DCS group, to the doubt clearing group, Telegram group? Grammar के जो भी doubts हैं, you can ask there in the Telegram group. Kick the bucket means to die, Soumya. That means to die. Yes, she died even when she was very fit. Okay, so seems like nobody's added to that group. Just a second. Let me finish this, then we'll talk about group and doubt clearing. So this bolt from the blue. Bolt from the blue is something which is unexpected. Something which is unexpected. Bolt from the blue is no, Naitik. I'll let you know. I'll let you know about the group. So bolt from the blue is something that is unexpected and took me and my siblings by storm. Now I understand the wheel and woe of life. What is wheel and woe, students? What is wheel and woe in this context? क्या meaning है wheel and woe का? Joy and sorrow. Wheel and woe means joy and sorrow. ये सारे idioms, ये जितने भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं ना, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं. आपको ये याद कैसे रहेगा? आप इस बात पे फोकस करो. बस एक ही तरीका है. एक बार जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आप अच्छे से चीजों को समझो. एक बार जब मैं आपको ये सेंड करूंगा, आप एक बार रीड कर लेना, हो गया काम. इससे ज्यादा बार टाइम लगेगा ही नहीं. ठीक है. माइन्यूट इज समथिंग वेरी स्मॉल. धनंजय, माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल. So we'll end go of life and know that we have to throw up the sponge. Throw up the sponge का meaning होता है to surrender. This means to surrender willy-nilly to the events destined in our lives. What is willy-nilly? हाँ, RSMs आपको start कर देना चाहिए अब देव. RSM start कर देना चाहिए. Willy-nilly means whether one wishes or not. कोई काम आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, that is what willy-nilly is. ठीक है. So I hope we are done with the first part. देख लेते हैं भी कितने हमें words यहाँ पर मिल रहे हैं. I think we have done around 18 to 19 words here. Any RSM you can pick, Kabir. जिस भी topic को आपको पढ़ना है, based on that you can pick any RSM. That is not a problem. So 18 to 19 words. Nostalgic क्या होता है? Nostalgic is Dhaval, when we think about very happy days of our past की बात सोच के हम बड़े emotional हो जाते हैं. That is what nostalgia is. चलो, let's move to the next part of this story. So here's your next part, guys. यहाँ पर हमारे पढ़ने के लिए क्या है? We have Greenhorn, we have Herculean task, haul over the coals. बताऊंगा सौम्या, बताऊंगा, इस बारे में भी बात करते हैं. To bring the house down, damn squib, candidly, end in a fiasco, pull a long face, flowing the sands, pick holes, foot in mouth moment. So ये सारे नए idioms आपका वेट कर रहे हैं. नॉस्टैल्जिक प्लानर क्या होता है? आई डोंट नो. मैंने ये नहीं पढ़ा है शायद, मतलब नहीं सुना है राधा, आई वुड से.
संस्कृति स्टूड इन ग्रेट स्टेट का मीनिंग होता है कि टू स्टैंड इन टू स्टैंड व्हेन समवन नीड्स यू, टू स्टैंड व्हेन समवन नीड्स यू, टू बी हेल्पफुल विद समवन। रैकेटोर मैंने बताया, रैकेटोर्स धवल आर दोज पीपल who are very good at storytelling, who are very good at storytelling. End in a fiasco means to end in failure. कुछ भी आपने कोई काम किया, आपको उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ. That something which is an utter failure, that is what ending in a fiasco means. Candidly means frankly. ठीक है. Herculean task is a very difficult task. You would say कि यार ये काम तो मेरे लिए Herculean task है, जो काम मेरे लिए बहुत difficult है. That is Herculean task. Damn squib is utter failure, complete failure. Yes, Dave. Yes, you are right. Pick holes means to point fingers as other. मतलब दूसरों की गलतियां ढूंढना. That is what picking holes means. Die hard fan. Die hard मतलब कहाँ लिखा है? Die hard means to do something with all your energy. That is what die hard means. Yes, Avina. Foot in mouth movement is something sort of an embarrassing movement. Embarrassing movement. Pervasive Natik, pervasive is related to, I think, danger. Yes, Ishika, that is also correct. तो एक बार सारे देख लो, if you guys feel कि सर हो गए सारे, तो फिर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला. स्टूडेंट ग्रेड स्टेट का मीनिंग होता है धवल टू बी हेल्पफुल, टू बी हेल्पफुल. फ्यूटाइल इज समथिंग लक्षिता विच इज यूजलेस. फ्यूटाइल इज समथिंग विच इज यूजलेस, जिससे कोई हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है. दैट इज व्हाट फ्यूटाइल इज. कैंडिडली मीन्स फ्रैंकली. सो आई विल नाउ गो थ्रू द पैसेज और फिर मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज आप लोग एक ही वर्ड को 10 बच्चे अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो मेरे लिए वो एक ही बात को 10 बार बताना, आई डोंट थिंक दैट इज worth doing, and obviously that waste your time as well. ठीक है. So let me read this and then we'll talk about all the words. So as far as I am concerned, so earlier he was talking about his grandmother कि यार वो कितना अच्छा उनका story telling था और वो सारी चीजें, but he says कि she kicked the bucket, she died even though when she was very fit. Now it was like a bolt for all the blue for that boy. It was very unexpected, and soon he realizes कि यार लाइफ में जो destined है वो होना ही होना है. Then what happens कि as far as he's concerned, as far as I'm concerned, I'm a greenhorn. Greenhorn is someone who is young, young and inexperienced. Greenhorn is young and inexperienced. In comparison to my grandmother, who was a great hand at storytelling. For me, storytelling is a Herculean task. Now, अगर वो अपने आप को ये कह रहा है कि यार ग्रैंडमदर के कंपैरेटिवली मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. So, storytelling for him is a Herculean task. Herculean task is difficult task. Difficult task. And my sons hauls me over the coal. Haul over the coal matlab to, you can say to criticize someone.
or you can write to take to task. Yes, Praket, it will be uploaded. It will be uploaded. ठीक है. So हॉलो, तो अब वो बता रहे कि भी उसका जो सन है, व्हाट ही डज, कि जब मैं उसको स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो वो मतलब उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको बोलता है कि यार आप अच्छी स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो. सो माई सन हॉल्स मी ओवर द कोल इफ आई फेल टू ब्रिंग द हाउस डाउन. ठीक है. ब्रिंग द हाउस डाउन का मीनिंग क्या होता है? ब्रिंग द हाउस डाउन. सृष्टि, हॉल ओवर द कोल्स का मीनिंग होता है टू टेक टू टास्क. जैसे अगर मुझे कोई काम दिया गया, अब मैं वो काम नहीं कर पाया टाइम पे, सो व्हाट माय मैनेजर विल डू, शी विल हॉल मी ओवर द कोल्स. मतलब वो she'll scold me, she'll criticize me. Bring the house down means to impress everyone. हाँ, to impress everyone with your performance. To impress everyone with your performance, that is what bringing the house down means. ठीक है. I am a damn squib at storytelling. So damn squib is complete failure. Damn squib is complete failure in this case. Damn squib is complete failure at storytelling. Now, candidly means frankly. Frankly, I would say that all my efforts end in a fiasco. End in a fiasco means it means end in failure. किसी चीज के लिए fail हो जाए. And at the end, he pulls a long face. Now he pulls a long face. Who? The author's son in this case. Pull a long face means to be sad, if I'm not wrong. Yes, to look sad. And I find myself plowing the sands. Plowing the sand मतलब आप मिट्टी को प्लो कर रहे हो. प्लोइंग हम करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे फील्ड होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हमें करना होता है. अब सैंड को आप प्लो कर रहे हो. सो इज इट वर्थ डूइंग गाइज? इज इट वर्थ डूइंग? इज इट वर्थ प्लोइंग द सैंड? Plowing the sand in this case means to do futile labor. To do futile labor. नहीं. Dig up the past is something different, Ishika. It is not the same. It is quite different from here. Futile is useless. Animesh, futile is useless. Useless labor. ठीक है. He picks holes in all my stories and I end up with my foot in my mouth. So to picking hole means to find faults. Pick hole means to find faults. And the last one that was there was foot in mouth movement. Foot in mouth means, you can say, an embarrassing moment. An embarrassing moment. So यहाँ पर कितने नए आपको idioms मिल गए हैं बता दो मुझे.
चलो इन सारी बातों से हटके जस्ट टेल मी वन थिंग, bring the house down सृष्टि, bring the house down means कि impress everyone with excellent performance। कहीं कहीं पर आप देख रहे हो ना कि कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है और बिल्कुल म्यूजिक सुन के, परफॉर्मेंस देख के लोग बिल्कुल जो ऑडियंस होती है वो बिल्कुल पागल हो जाती है, लाइक वाह यार मजा आ गया मतलब आज। सो दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी कि आर यू गाइस फाइंडिंग दिस मेथड हेल्पफुल इन योर वोकैबुलरी? पहले तो मुझे ये बताओ, याद हो रही है या चीजें नहीं? देखो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने सेशन ले लिया और आपको बोल दिया बेटा ये लिख लो, ये ऐसा कर लो, नहीं। मेरा तब तक भाई पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता जब तक आप ये ना बोलो कि सर सारे याद हो गए, तभी मजा है, तभी मजा है ना। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड आई ऑल्सो नो कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ते हैं, सो इट इज नॉट दैट इजी कि सारे वर्ड्स उठ के आपके दिमाग में चले जाएंगे। फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होता है, आई गेट दैट। बट वाई आई चूज दिस मेथड ओवर दी अदर मेथड्स, कि मैं आपको ईडियम्स, क्या फिर वो तरीका क्लिक करा सकता था कि भाई ईडियम आ गया, मीनिंग बता दिया, सेंटेंस बता दिया। इतना आसान नहीं होता है। सो आई ट्राई एंड मेक अप दीज इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड ऑल दीज थिंग्स जो हम इस तरीके से कर पाए, ठीक है। बढ़ेगा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा देव। अभी आपने कितना प्रिपेयर किया ये भी तो सोचो, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, ठीक है। हॉल ओवर द कोल्स, हॉल ओवर द कोल्स का मीनिंग होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना उसके काम के लिए। आएंगे ना सर सारे, आई ट्रूली बिलीव कि ये सारे वर्ड्स, सी यू गाइज आर इन अ प्रोसेस, जस्ट रिमेंबर दैट। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बस आपको वर्ड्स सारे याद हो जाएंगे, कोई ओवरनाइट आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ऐसा नहीं। प्रोसेस है, वोकैबुलरी प्रोसेस है, ठीक है। एक बार बस लिख लेना लक्षिता, शी लक्षिता, दैट पर्सन इज सेइंग कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, ही इज नॉट गुड एट स्टोरी टेलिंग, दैट इज व्हाई हिज सन इज हॉलिंग हिम ओवर द कोल्स, ठीक है। ठीक है चलो, सो लेट्स प्रोसीड देन। सो आई थिंक यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें मिल गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 14 to 15, और ओके सृष्टि सेइंग 11, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स जस्ट कंक्लूड द स्टोरी। फिर लास्ट में फिर डिटेल में मैं सारे वर्ड्स आपको बताऊंगा। एंड इन अ फियास्को मींस अटर फेलियर, धवल। क्रिटिसाइज में कहीं कहीं पर एस ई भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर जेड ई भी लिखा होता है। सो आई लीव इट टू यू गाइस टू डिसाइड कि आपको कहां पर एस ई लगाना है, कहां पर जेड ई लगाना है, ठीक है। दोनों स्पेलिंग होता है। यस ध्रुवा, हॉल के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं, पर ईडियम के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग था, आई थिंक हमारा फोकस सिर्फ वहीं तक था, ठीक है। लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस पार्ट नाउ, बहुत सारा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, इसको खत्म करते हैं, फिर और एक नया तरीका बताऊंगा ईडीएम्स करने का। यस रिशांत, देयर आर वर्ड्स लाइक कि कहीं पर एस आ रहा है और कहीं पर जी आ रहा है, सो दैट कैन बी कंफ्यूजिंग, आई गेट दैट। Arouse means create. They create a power of imagination. Even a broken clock is right twice a day. ये जनरली हम उसको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन इज फीलिंग वेरी डाउन, उसको लगता है डीमोटिवेटेड है कि यार मैं
कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, आई एम एन अटर फेलियर, तो फिर उसे मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि यार एक घड़ी जो कुछ भी नहीं कर रही है, जो चल भी नहीं रही है, इवन दैट इज राइट 2 times a day, तो आप तो अभी बहुत कुछ कर सकते हो। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है दीप्ति। I think below the wisp, it means something which is unreal, something which is unreal. No, with a pinch of salt का मतलब होता है कि 100% नहीं, किसी चीज को आप 100% नहीं मान रहे हो। If you're taking something with a pinch of salt, that means with some doubt, with some doubt. Flutter, stay in a flutter का मतलब stay excited, stay excited. Tall stories, हाँ, tall stories generally उस सेंस में होता है, stories which are difficult to believe. Tall stories are stories which are difficult to believe. Take with a pinch of salt. With a pinch of salt means having some doubt about what is said. Take something with a pinch of salt means having some doubt about it, something. ठीक है, legendary characters will o the wisp. Will o the wisp is unreal. Something which is unreal, and if something is unreal, we can say it is imaginary as well. ठीक है. Ivory tower is again unrealistic world या imaginary world में आप चल रहे हो. ठीक है, मैं पहले सारे वर्ड्स लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें. So it is imaginary word, and in a flutter means to be in excitement. ठीक है, सारे मीनिंग्स लिख दिए हैं बेटा, अब बता दो अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो. And overall, I would say we have done 40 plus words. 40 plus words on this short story, on this short, yes, double, ठीक है. 38, 40, the number can vary a little bit, but I guess the purpose is clear, and it is not about just the number of words. वो मैटर नहीं करता है यार मेरे लिए कि मैं एक सेशन में आपको 4 वर्ड सिखाता हूँ या 40 वर्ड सिखाता हूँ. आपके यहाँ पे कितने जा रहे हैं, मेरे लिए वो मैटर करता है. रिचा एंड आशीष एंड मेहर, स्टूडेंट्स आपको जो भी डाउट्स पूछने, जो भी कमेंट करना है, वो आप चैट सेक्शन में करो बेटा, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मत करो, बिकॉज इट रिमेन्स अननोटिस्ड. चैट में ही आपको सारी चीजें पूछनी है. ठीक है. Legendary characters are like very famous characters, very famous characters. Will o the wisp is something which is unreal. अब समझना, children love tall stories. Tall stories मतलब वही imaginary stories. ठीक है. But they do it with a pinch of salt. मतलब सुनते तो है, but उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार इतना अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, क्या सही में ऐसा हुआ होगा. So they have that little bit of doubt there. ठीक है. Now, though the stories of fairies and legendary characters will appear unreal, but undoubtedly these stories arise the power of imagination, and children build imaginary world and stay excited all day long. We are talking about children.
जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें स्टोरी एक सुना दो तो दिन भर उनके दिमाग में वो स्टोरी चलती है, इमेजिन। तो उनके दिमाग में ये सब चलता रहता होगा ना कि यार ये इमेजिनरी था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा ने कुछ भी स्टोरी सुना दी। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, सो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ, कहीं पर कोई वर्ड यूज हुआ है तो वो करेक्ट यूज हुआ है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज वर्ड्स and then I will have another discussion with you guys. थैंक्स कोई वर्ड ही नहीं है नैतिक। थैंक्स हम स्लैंग में बोल देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट थैंक्स जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। आप अगर ग्रामेटिकली लिखने जाओगे, आप कुछ राइटिंग लिखोगे, कुछ एडिटोरियल लिखोगे, तो उसमें आप थैंक यू लिखने जाओगे, आप थैंक्स नहीं लिखोगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। जब वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर उसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। मुझे भेजना, आप मुझे भेजना नैतिक, आई विल सी। ऑफ कोर्स आई विल। मुझे एक बार आप टेलीग्राम पर भेजना नैतिक, फोटो खींच के, आई सी दैट, आई सी दैट, ठीक है। सो चलो, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस, और उसके बाद कुछ बोनस भी, कुछ बोनस भी है ना। सिर्फ इतने वर्ड्स में मैं आपको छोड़ने वाला तो हूं नहीं। चलो, सो एक बार लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द वर्ड्स। सो हमने लेजेंड्स एंड एनेक्डोट्स देखा, ठीक है। अब इसमें भी आप कैटेगरी कैसे बना सकते हो समझना, इसमें भी आप कैटेगरी कैसे बना सकते हो समझना। इसमें जो भी वर्ड्स एक्सपीरियंस के लिए यूज किए, जो इडियम्स ग्रैंड मदर के लिए यूज किए, उनको एक साइड रख सकते हो। जो इन एक्सपीरियंस के लिए यूज किए या जो नेगेटिव सेंस में यूज किए, उनको एक जगह पे कंपाइल कर सकते हो। तो इसमें भी इन 40 वर्ड्स में भी आप कैटेगरीज बना सकते हो कि यार ये वाला वर्ड मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक लग रहा है, ये वाला वर्ड मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक लग रहा है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर जितने ईडियम्स, जितने वर्ड, जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, आई वुड से आपको रैकेंटर याद रखने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, आई थिंक सो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इन 40 के पूरे पूरे अब आप कॉपी में लिखने मत जाओ। जो आपको समझ आ गए, जो आपको याद हो गए, उनको छोड़ दो। बट जो लग रहे हैं कि यार ये वाला वर्ड मैं भूल सकता हूं, सो उसको आप नोट करो। उसको और किसी कॉन्टेक्स्ट में, आपके घर के आसपास कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा आपका रिलेटिव, कोई ऐसा आपका फ्रेंड हु इज वेरी गुड एट स्टोरी टेलिंग, बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाता है, तो आप उससे उसको रिलेट करो, उससे उसको याद रख सकते हो, ठीक है। देन वी हैव गिफ्ट ऑफ गैब। आई थिंक गिफ्ट ऑफ गैब हम बहुत कॉमन ईडियम है, आई वोंट से कि गिफ्ट ऑफ गैब बोलना मुश्किल होगा किसी के लिए। देन वी हैव बेटेड ब्रेथ। नाउ बेटेड ब्रेथ मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि हिंदी में आपने सुना होगा कि शोज वगैरह में एंकर्स बोलते हैं ना कि सब लोग अपनी सांसें थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब परफॉर्मेंस के लिए आने वाले हैं अक्षय कुमार और शाहरुख खान और वॉट एवर हु एवर दैट पर्सन इज। सो दैट इज व्हाट बेटेड ब्रेथ इज, कि बिल्कुल एक्साइटमेंट में आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, ठीक है। नाउ वी डिड यार्न एज वेल, मीडी माउथेड देखा, स्टूडेंट गेट स्टेट देखा, किक द बकेट, फिट एज फिडल, ये दोनों भी ऐसे हैं जो आई एक्सपेक्ट कि आप कर लोगे। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, व्हील एंड वो, थ्रो अप द स्पंज, विल इन ए लीक, ठीक है। सो दैट वाज योर फर्स्ट वन। सेकंड में ग्रीन हॉर्न पर्सन जो है, ग्रीन हॉर्न पर्सन दैट इज रिलेटेड टू young and inexperienced person. Then we had Herculean task, all over the coals, damn squib, bring the house down. So I guess
कोई भी वर्ड गाइज आपको लगता है कि सर ये डिस्कस करना है, तो यू हैव अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, देख लो। एंड अगर लगता है कि सब बढ़िया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सम स्टूडेंट्स वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड मी ऑन टेलीग्राम। तो गाइज दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ABH in capitals and English in small letters. कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर verbal ability preparation, you can always contact me here on Telegram. ध्रुवा, जो भी सेंटेंस बोल रहे हो बेटा एक बार मुझे भेजना टेलीग्राम पे, आई विल सी कि उसमें क्या सही है क्या इनकरेक्ट है। सो गाइज, एनीवन एनी डाउट्स हियर? Ananya, there aren't, I don't think there are different DCS groups for different batches. एक ही DCS ग्रुप है, तो आई एक्सपेक्ट कि उसमें सब बच्चे ऐड होंगे। जो बच्चे ऐड अभी नहीं हुए हैं, सो ऑब्वियसली द टीम नोज कि उन्हें ऐड करना है, दे विल डू दैट। यस सौम्या, दैट इज द ग्रुप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए एक बार मुझे मैसेज डाल देना, आई टेल द टीम टू डू दैट। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, दे विल स्टार्ट। मनस्वी, अभी आप लोग बेटा अभी अपने स्कूल के एग्जाम्स में आप अभी एंगेज हो, आई नो। तो वी हैव एवरीथिंग प्लान्ड, वी हैव एवरीथिंग लाइंड अप फॉर यू गाइस, तो उसके लिए टेंशन आप मत लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। देखो, मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ईडियम एंड फ्रेजेस, कोई भी बच्चा मेरे पास आता है कहता है सर ये पढ़ना कैसे है? सर बुक में तो 700-800 ईडियम्स दिए, हाउ टू अप्रोच देम? एंड ट्रू, दैट इज नॉट द केस कि आप ए से आपने ईडियम स्टार्ट कर दिए, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे ईडियम्स हम नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड मेक थीम्स। कलर बेस्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस को एक साथ लिख लो, एनिमल बेस्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस को एक साथ लिख लो। ठीक है, आप फूड रिलेटेड आइटम्स को एक साथ लिख सकते हो, आप कलर बेस्ड ईडियम्स को लिख सकते हो। तो ट्राई एंड मेक अ लॉट ऑफ थीम्स। ये थीम वाली चीज जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, अब कुछ ईडियम्स मैं आपको बताऊंगा और कुछ ईडियम्स आप मुझे बताएंगे एज होमवर्क। सो आज आपका पहली चीज तो आप लिख लोगे, आपका टास्क क्या है। आपका आज टास्क ये है कि आपको एनिमल ईडियम्स, यस, एनिमल ईडियम्स पढ़ने हैं सारे इंटरनेट से। और ये आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ऑफ अराउंड 50+ एनिमल ईडियम्स। सो किन किन बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये टास्क खत्म हो जाएगा सर आज या कल या परसों तक? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आज ही चाहिए, बट 1-2 दिन में जैसे ही टाइम मिलता है कर डालना है। सो कैन आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू डू दैट? एंड प्लीज रिमेंबर गाइज, यू गाइज आर नॉट डूइंग दिस फॉर मी। आपको एग्जाम देना है बेटा, तो ये थोड़ा मेहनत हमें करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स, इफ मनस्वी सेइंग कुछ एग्जाम्पल, जैसे इफ वी से इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स, तो कैट एंड डॉग्स वाला चीज मतलब रेनिंग हेविली, कैट एंड डॉग लाइफ होता है, पिंक एलिफेंट ईडियम होता है, एक ईडियम होता है लेपर्ड कांट चेंजेस स्पॉट्स। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल से रिलेटेड आपको ईडियम मिलेंगे। 50+ तो मिल जाएंगे इजिली, मैं ये नहीं कह रहा कि 50+ में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट कि आप करोगे। नाउ आई विल हेल्प यू। अच्छा, वी हैव डन दैट इन द क्लास ओनली। ठीक है लक्षिता, आपको मैं दूसरा टास्क देता हूं बेटा, रुक जाओ। ठीक है, सो ओनली विथ मीनिंग, यस यस, ओनली विथ मीनिंग। एंड यू प्लीज रिमेंबर कि मैं ये नहीं देखने वाला हूं उसमें कि आपने कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में चीजें लिखी हैं या क्या लिखा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद हो जाएं, बस मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं। ये टास्क देने का मेरा सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट कलर इडियम्स। और कलर इडियम्स में भी एक स्पेसिफिक कलर आज मैंने उठाया है, विच इज ब्लू। तो ब्लू से रिलेटेड कौन कौन से मैं इडियम्स लिख सकता हूं उन पर फोकस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पूरा पूरा मीनिंग मैं यहाँ पे लिखने नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये काम कौन करेगा? ये काम आप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट,
बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। फिर वंस इन अ ब्लू मून। ध्रुवा ऐसा कोई इडियम नहीं होता बेटा। वंस इन अ ब्लू मून, फीलिंग ब्लू। और कोई ब्लू से रिलेटेड इडियम। ब्लू पेंसिल। व्हाट इज ब्लू पेंसिल? आउट ऑफ द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक ही चीज है, एक ही चीज है वो, ठीक है। देन वी कैन राइट ब्लू आइड बॉय। आउट ऑफ द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सेम ही होता है, ठीक है गाइस। ठीक है। फिर ब्लू इन द फेस। यस, ब्लू इन द फेस इज वन। ओके ध्रुवा, ठीक है। देन वंस इन अ ब्लू मून हो गया। फिर टू बीट। यस, ब्लू कॉलर इज ऑल्सो वन, बिल्कुल। अनस्वरा, ठीक है। टू बीट, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू कॉलर। बता रहा हूँ, मीनिंग सारे बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड भी लिख लो, ठीक है। चलो भाई, ब्लू से रिलेटेड इतने इडियम बेटा। जिन बच्चों ने बोला ना कि एनिमल इडियम्स हम कर चुके हैं, आप कलर रिलेटेड इडियम्स ढूंढोगे। कलर रिलेटेड इडियम्स आप ढूंढोगे, ठीक है, आपका ये टास्क है। ब्लू कलर मैंने बता दिया। वाइट से बहुत सारे होते हैं, ब्लैक से होता है, येलो, ग्रीन, रेड, सो बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। नाउ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इज समथिंग। व्हाट इज समथिंग? सॉरी, व्हाट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू? What is bolt from the blue, students? Let's discuss all these idioms. And yes, bolt from the blue is something which is unexpected. तो bolt from the blue लिखो या out of the blue लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। It means something that is unexpected. Once in a blue moon. If something is happening once in a blue moon, कभी कभार हो गया, कभी कभार हो गया, that is what once in a blue moon means. So something that happens rarely. Rarely. Now, feeling blue. I'm feeling blue today. गाना भी है इसके ऊपर, तो कई गाने हैं। Feeling blue is related to feeling sad and tired. Blue pencil something, किसी चीज के ऊपर ब्लू पेंसिल कर देना। ब्लू पेंसिल कर देना मतलब किसी चीज को सेंसर कर देना। टू सेंसर समथिंग। सेंसर करना मतलब किसी चीज पे बैन कर देना, किसी चीज को प्रोहिबिट कर देना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना। That is what blue penciling something means. Is that clear? Blue eyed boy, favorite boy. ठीक है। Then we have blue in the face. Blue in the face का मतलब होता है to make enormous effort. To make enormous effort for something useless. बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो for something which is useless. चॉकलेट बॉय अलग होता है लक्षिता। टू बीट ब्लू एंड ब्लैक का मतलब होता है टू बीट समवन मर्सिलेसली। ठीक है, हम कहते हैं ना यार, मार मार के बिल्कुल नीला पीला कर दिया, मार मार के। सो दैट इज beat to beat someone. Black and blue means. Now blue collar are royal people, blue collar. And blue blood, nahi, ulta bol diya, I guess. Blue blood is what we call as royal.
Blue blood is royal and blue collar are unskilled workers. अनस्किल्ड वर्कर्स। तो भाई मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात समझाता हूं सिर्फ, कि थीम्स के पीछे भागो, वर्ड्स के पीछे मत भागो। कोशिश करो कि जितने थीम्स आप डेवलप कर सको ना, दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वर्ड्स याद कर लोगे, आप थीम्स बनाने जाया करो, हमेशा इस बात पे फोकस किया करो। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। एंड in today's session, if I'm to conclude things, I would say we have done 50 plus words. When I say words, I mean it includes one word substitutions, it includes idioms and phrases, themes कैसे बनाना है पहल, ठीक है, सिंपल है, जब भी आप कोई नया वर्ड पढ़ते हो उसके सिनोनिम एंटोनिम वहां पे लिख लो, थीम बन गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे थ्रू आउट आवर सेशंस, वोकैबुलरी में जब जब हम आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ थीम्स के अराउंड में बातें करूंगा, मैं ये बातें नहीं करूंगा कि बेटा ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग होता है, बस ऐसे याद कर लो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम थीम्स के अराउंड वर्क करेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट RSM? सो यू गाइस शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम RSMs। जो जो टॉपिक क्लास में होते जा रहे हैं आप RSM में करना वो शुरू कर दो, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो करना अब स्टार्ट आपको कर देना चाहिए। सो हैविंग सेड ऑल दैट, बच्चा पार्टी 50 वर्ड्स किए हैं। आई होप आपको वो वर्ड्स रिकॉल हो गए हैं। एक बार RSMs इज द स्टडी मटेरियल हर्षित, दैट इज स्टडी मटेरियल, रैंकर स्टडी मटेरियल। सो आई होप आपको वो वर्ड्स हो गए हैं, एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग योर वर्बल एबिलिटी प्रिपरेशन, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन द टेलीग्राम, राइट गाइज? तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, यू नीड टू गेट यूज टू इट, देयर इज नो अदर वे दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।